all, uh, when I watched this movie for the first time, and I believe many of you may have already seen this movie called as Gully Boy, which is based on the rap artist and how an underdog, achieves something. And when I was watching this movie first time in a theater, I was thinking that this story goes very well with the entrepreneurship, and that is where the movie clicked me, because I'm always thinking about how to correlate the movies, the books to our profession. And from that thread itself, I wrote a blog, and from that thread itself, I'm conducting this session. So I'm going to just share some light dialogues from the movie, some interpretation about those dialogues for next half an hour or so, and then I'll be really glad to discuss any questions, interactions, comments, ideas, and things like that. So talk in the movie called as "अभी कोई बताएगा, अभी कोई और बताएगा कि मैं कौन हूँ." And this dialogue happens when the lead character is talking with his father, और उसके पिताजी उनको बोलते हैं कि ये गाना बिना कुछ नहीं होता है, ये रैप सॉन्ग पॉपुलर होता है, लेकिन इससे क्या मिलता है, and so on and so forth. And then this lead character says that there is no need for somebody else to tell me who I am. When we try to correlate this to business, every entrepreneur is aware of his or her capabilities, uh, and there is not necessarily a need to being educated in management or for business for that matter. So आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा. सो इलॉन मस्क एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिनकी दो तीन कंपनियां हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपको शायद टेस्ला मोटर्स बैटरी पावर्ड व्हीकल्स जो बनाते वो बहुत वो मालूम होगा. Another company that he runs is called as SpaceX, which is basically developing rockets at economical pricing. So it competes with defense department of US. So why I'm correlating this example with Elon Musk is when he started, he is basically from South Africa, and he always wanted to get into go to US and do his own business and things like that. And as a kid, he developed one game with computer programming skills that earned him some money. Then he decided to go to Canada, because getting a visa to Canada was easier than getting a visa to US. And from then on, he developed his career based on his strengths and self-understanding. अगर वो एंटरप्रेन्योर खुद को नहीं पहचानता अच्छी तरीके से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव टू द आउटसाइड वर्ल्ड. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द ऑडियो? ऑडियो ओके है? सचिन थोड़ा थोड़ा ड्रैग होता है कभी कभी. आई थिंक दैट कुड बी द बैंड. ओके ओके ओके, bandwidth. Okay, bandwidth problem could be bandwidth problem. No. So ये जो डायलॉग है, अभी कोई बताएगा कि मैं कौन हूँ. Every entrepreneur knows his and her strengths and skill sets, but over a period of time you will find that आप entrepreneurship के कौन से भी लेवल पे है, अगर स्टार्टिंग अप भी है, मैच्योर्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत सीनियर एंटरप्रेन्योर है, सो यू विल आइडेंटिफाई दैट आपका जो स्किल सेट्स है, आपका जो अवेयरनेस है, दैट इम्प्रूव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो कोई एंटरप्रेन्योर, जैसे कि आर्टिस्ट की स्टोरी में है, खुद को पहचानना चाहिए कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर आवर वीकनेसेस. वन ऑफ द बुक that I have authored is called as Designing Effective Business Plan. And in that book also, I talk about the same thing as to how you should know your strengths, how you should know your skill sets. And only if you are aware of yourself, then you can offer something tangible to the others. Let's go to the next dialogue.
when this lead character is actually working with his mama, and for one rap competition he has to go to that competition on a weekday. He takes his mama's permission, and his mama asks him, कि ये सब क्या चीज है, बहुत अंग्रेजी वर्ड सीख रहा है. वो बोलता है कि आई एम गोइंग फॉर अ बैटल एंड दिस थिंग्स लाइक दैट. So whenever an entrepreneur is starting up, the family is actually supportive, and that's why I ask questions कि आप ये क्यों कर रहे हैं, why you are not doing a secure job and things like that. So what he basically thinks on his way out of his mama's office and on his way to the battle, एक ही रास्ता जिस पर चुपा चुप सर को झुकाए हुए बंद आंखें कि यह लोग चलते हैं. सो हम सब ने कभी ना कभी मुंबई की ट्रेन में ट्रैवल किया है. वी सी हाउ पीपल आर pretty tired of their schedule. They have to travel a lot every day and things like that. So then he says आगे कि सारा जन चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग. कोई दीवाना ही होता है तो उधर जाता है. दैट मीन्स अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में, सो यू विल हैव टू फाइंड योर ओन पाथ एंड दैट विल जनरली बी डिफरेंट देन अदर्स. तो बहुत लोग आपको पूछेंगे आप ये क्या कर रहे हैं. सो यहाँ पे मुझे एक स्टोरी नारायण मूर्ति जी की शेयर करनी है. सो नारायण मूर्ति पटनी कंप्यूटर्स करके कंपनी में पहले जॉब में थे along with many of his co-founders. उसके बाद उन्होंने एक कंपनी चालू की इन्फोसिस. और ये इन्फोसिस कंपनी उन्होंने चालू की coincidentally for all of us, he started his company in Pune. So when he started, from his family also, he was in a first generation entrepreneur. And whenever you are a first generation entrepreneur, really there are a lot of hurdles, family hurdles. उसके बाद में especially for entrepreneurs who are into different businesses, again you are going to face this challenge because somewhere or the other you are trying to get into a different path. So ये डायलॉग बेसिकली ये मूवी से मुझे इसलिए अच्छा लगता है. इनफैक्ट दिस इज अ एंटायर सॉन्ग इन इटसेल्फ. तो नारायण मूर्ति जी ने जैसे एक अलग से उनका रास्ता ढूंढा है, इन्फोसिस जैसी कंपनी बनाई. दैट इज वेयर you will have to think different, you will have to act different. एंड दिस इज नॉट वन टाइम. ऐसे ही नहीं कि आपको आपके कोई बिजनेस के स्टार्ट में या करियर के स्टार्ट में कुछ अलग चीज करनी है. ऐसे होता है कि शायद आप ये करियर में 20-25 साल है, लेकिन अभी टाइम चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है. आई विल बी शेयरिंग अ लिंक टू डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन स्लाइड. सो अगर किसी को ये डायलॉग्स अच्छे लगते हैं, इमेजेस अच्छे लगते हैं, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द प्रेजेंटेशन लेटर ऑन. आई विल शेयर द लिंक. Let's move to the next one. Very popular song, अपना टाइम आएगा, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है. एंड इसके साथ मुझे और एक अच्छा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना है. दैट इज ऑफ अकियो मोरिटा. सोनी कंपनी सबको मालूम है, सोनी कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जायंट. तो अकियो मोरिटा जी ने एक बुक लिखा था, मेड इन जापान. आई एम ग्रेट फैन ऑफ दिस बुक. अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड. मेड इन जापान बुक में इसकी बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन मैं आपको एक सिर्फ शॉर्ट में बोलता हूँ कि अपना टाइम आएगा, इसके लिए आपको कितना प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. सो व्हेन दे स्टार्टेड सोनी कॉर्पोरेशन इन जापान, द entire country, they started this company after Second World War. Entire country was devastated. In fact ये कंपनी उन्होंने जो बिल्डिंग में स्टार्ट की, वो बिल्डिंग भी बॉम्ब्स की वजह से टूट गई थी. स्टिल दे हैड देयर फेथ. उन्होंने अपना कंसंट्रेशन रखा एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ स्टार्टिंग दिस कंपनी. तो इसलिए चीज नहीं, हमारे नसीब में अच्छी चीज लिखी है तो ही अच्छा होता है, बुरी चीज लिखी है तो ही बुरा होता है. नॉट नेसेसरी, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड. अपॉर्चुनिटी आती है तो जैसे हमने सुना है कोर्ट में कि एक बार ही दस्तक देती है दरवाजे पे. सो वी विल हैव टू बी रेडी, एंड व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम्स यू विल हैव टू गेट स्टार्टेड.
also this is true not only for a first generation entrepreneur but somebody who is into entrepreneurship, जिनका business है बहुत सालों से, still you will find that after a period of time आपको ऐसा नजर में आ जाएगा कि बहुत सारी चीजें बदल रही है. So you will have to adjust yourself, your business, आपके प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से बदलना चाहिए. तो मैंने जो एग्जांपल दिया है सोनी कॉर्पोरेशन का, वो आज कंपनी बहुत ट्रबल में है बिकॉज उनका जो फोकस था दैट इज टेलीविजन सेट्स, वॉकमैन एंड ऑल दोज थिंग्स आर चेंजिंग सो मच दैट वो कंपनी उसका स्पीड मेंटेन नहीं कर पाई. लेट्स टेक नेक्स्ट डायलॉग. When this lead character is talking with his girlfriend, वो बोलता है कि तू इतनी डेयरिंग कैसे है, एंड शी सेज नहीं तो इतना सारा जो लाई है वो कैसे मिलेगा. So whenever you want to achieve anything, you have to dare, you have to take risk. Without risk there is no reward. यहाँ पे मैंने अगेन इलॉन मस्क का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. साइबर ट्रक करके उनका एक कंपनी का एक लेटेस्ट व्हीकल उन्होंने लॉन्च किया और ऐसा बोला गया कि उनका मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स सेड दैट उसका डिजाइन अच्छा नहीं है, बट दैट ट्रक का एडवांस बुकिंग इतना ज्यादा हो गया है. सो जो कोई कुछ भी क्रिटिक्स बोल रहे थे, अगर वो इलॉन मस्क ने सुना होता और शायद उन्होंने सोचा होता कि अरे इसके डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और करना चाहिए, then that would not necessarily have worked. So if you want to do something different, you have to dare. ऐसे बैठे बैठे किसी का बिजनेस ग्रोथ नहीं हुआ है. So what you have to focus on is how you can achieve further by taking more risk. और रिस्क माने ऐसा नहीं कि कुछ भी करे उसके लिए. So you have to take calculated risk. So टेक्नोलॉजी एक रिस्क है, पॉलिटिकल सिचुएशन रिस्क है. अभी का जो सिचुएशन है पैंडेमिक, सब लोग लॉकडाउन में हैं, ये लॉकडाउन भी एक टाइप की रिस्क ही है. तो देयर इज अ हाई चांस कि कोई आज बैठ के ऐसा बिजनेस के बारे में सोच रहा है जो 5 साल बाद 10 साल बाद बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, जिसके बारे में हमें अभी कुछ पता नहीं. आई होप आई एम ऑन ट्रैक. अगर आपको ठीक लग रहा है प्लीज गिव मी थम्स अप, अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग एनी फीडबैक. थैंक यू. अगला डायलॉग दैट इज ऑल्सो मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है. तेरे अंदर का लावा फटने दे. दैट मीन्स आपके एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्रोफेशनल, आपके अंदर यू नो जो एक एनर्जी है, वो एनर्जी बहुत सालों से ऐसा भी होता है कि कोई आपको बोलता है कि आपका ये करियर अच्छा नहीं है, कोई बोलता है कि आपका स्पेशलाइजेशन अच्छा नहीं है, कोई बोलता है कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, बट यू थिंक इन योर हार्ट दैट दिस इज गोइंग टू वर्क. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बाकी के लोगों की बातें सुनिए, लेकिन नॉट नेसेसरी कि उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले लो. सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपकी कुछ पैशन है तो वो पैशन आपको और डेवलप करनी है आपके करियर में, आपके बिजनेस में. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा स्टीव जॉब्स का. स्टीव जॉब्स जब उन्होंने कंपनी चालू की, स्टीव जॉब्स और वोजनियाक करके, तो स्टीव जॉब्स ये मार्केटिंग और सेल्स एक्सपर्ट ज़्यादा थे और उनके पार्टनर वोजनियाक करके वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे. तो ऐसे नहीं कि उनका भी कुछ बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस हुआ एप्पल. उन्होंने एक पहला प्रोडक्ट बनाया था ब्लू बॉक्स करके, जो एक्चुअली क्या बोलते हैं कि लीगल प्रोडक्ट नहीं था. वो ब्लू बॉक्स प्रोडक्ट यूज करके आप अपने लैंडलाइन फोन से किसी भी इंटरनेशनल नंबर डायल कर सकते थे और फ्री ऑफ चार्ज, माने लोकल कॉल के चार्ज में आप उनके साथ बात कर सकते थे. तो ये उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के मैगजीन में ये प्रोडक्ट के बारे में सुना, फिर ये प्रोडक्ट बनाया, फिर दोनों ने मिलकर फिर वो उसको मार्केट किया, सेलिंग किया उसका, एंड देन दे ऑलमोस्ट सोल्ड 50 ब्लू बॉक्सेस. तो ऐसी उनकी शुरुआत थी. तो ऐसे कुछ नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस है. मैं आपको मेरे और एक बुक का एग्जांपल देना चाहता हूँ, मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इफेक्टिव मार्केटिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स. ये बुक में मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया है कि आपको अगर कुछ अच्छा बनना है
तो आपको आपका पैशन फॉलो करना है। वो बुक में मैंने नारायण मूर्ति जी का भी एग्जाम्पल दिया है, मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन। तो अगर आपकी कुछ पैशन है तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। पूरी दुनिया को लग सकता है कि आप गलत है, बट फिर भी आपके अंदर वो एनर्जी है, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। ओके, मैं 1 मिनट वॉइस का सेटिंग चेंज करके देखता हूँ। अगर आपको कुछ पॉजिटिव डिफरेंस आए तो प्लीज मुझे था। इज इट बेटर नाउ? ऑडियो ठीक है? हाँ अभी ठीक हुआ। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक ऑप्शन चेंज करके देखा। सो जस्ट टू कंटिन्यू और एग्जांपल्स एंड डिस्कशन, मैं आपको अगला डायलॉग सुनाता हूँ। कोई बड़ी मुराद अगर सपने में दिख जाए तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए। मेनी टाइम्स हमें लोग बोलते हैं कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं क्या, दिन में सपने देख रहे हैं क्या। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और आज कोई भी हम लोग पॉपुलर प्रोडक्ट ले लें, हम कोई भी पॉपुलर सर्विस ले लें, कोई भी पॉपुलर ब्रांड ले लें, वो जब स्टार्ट हुआ था तो लोगों को लगा था कि अरे ये आदमी पागल है, ये आइडिया गलत है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चालू की, उन्होंने इनिशियली क्या किया कि वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थे, स्कूल डेज से उन्होंने कंप्यूटर सीखा था। उन्होंने क्या किया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम डॉस बोलते हैं, डीओएस, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से खरीद ली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उनकी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम कंपनी के साथ उन्होंने कुछ पहचान बनाई और उनको जाके बोला कि मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम पर्सनल कंप्यूटर बना सकते हैं। तो उन्होंने वो बहुत कम पैसों में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से खरीद ली और आईबीएम कंपनी को बेची। हर एक कंप्यूटर में जब वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती थी तो उसके पीछे बिल गेट्स को रॉयल्टी मिलती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट का जन्म ऐसे हुआ। और बिल गेट्स का पहले से कहना है कि मुझे हर घर में एक कंप्यूटर चाहिए। अभी वो आप देखेंगे कि हर घर में कंप्यूटर ही नहीं, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, बहुत सारी चीजें आ गई है। तो अगर ये सपना हम इनिशियली देखते हैं, हाई चांसेस अगर हमारा सच में सपना बड़ा है तो लोगों को लगता है यार ये आदमी क्या बात कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप अगर सही में वो चीज में आप बिलीव करते हैं, आप आपके ड्रीम में बिलीव करते हैं, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे लगा था कि ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, और ये देखो ये 4 लोग जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल कंपनियां, ये सब मेरी ही आइडिया थी लेकिन मैंने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया। सो मेनी ऑफ यू विल फील कि अरे यार मैंने वो आइडिया पे काम किया होता, आज तक मेरा कंपनी बड़ा हुआ होता, मेरा नाम हुआ होता, मैं मशहूर हुआ होता, मुझे बहुत पैसे मिलते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ड्रीम बिग, डोंट वरी, अपना देखने में खर्चा सेम आता है। ये बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है रैप में। फॉर्चुनेटली ये हिंदी में है, बहुत अच्छे वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। अगर आप अंग्रेजी रैप सुनोगे तो उसमें बहुत अच्छे वर्ड्स यूज नहीं होते। इसीलिए मैं पिक्चर का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट यूज किया है। तो ये एक बैटल में उसके कपड़ों, जो लीड कैरेक्टर है, हीरो है, उसके कपड़ों के ऊपर कुछ कमेंट करता है दूसरा जो उसका कॉम्पिटिटर होता है। तो ये लीड कैरेक्टर बोलता है, सलाम ठोक सर झुका, तू धूम दबाकर चल, रास्ता नाप ले, कपड़े सिलाई खुद के दम पर, नहीं लिए मैंने अपने बाप से। सो बेसिकली व्हाट ही मींस कि मैंने ऑन माय एफर्ट्स आई हैव अर्नड ऑल दिस। तो एक स्टार्टअप जो एक वर्ड है, आपने भी बहुत सुना होगा, कई लोगों का, आपने भी स्टार्टअप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, आपने किसी को गाइड किया होगा। वो स्टार्टअप कम्युनिटी में एक पॉपुलर चीज है एग्जिट स्ट्रेटजी। वो बोलते हैं कि हम कंपनी चालू करेंगे, दोस्त लोग मिलके, फिर थोड़ा सा कंपनी बड़ा होने लगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट आएंगे, पैसा लगाएंगे, कंपनी और बड़ा हो जाएगा, हम उसके शेयर्स बनाएंगे,
और फिर हम कंपनी से बाहर निकलेंगे, वो बोलते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो एक बार मैं नेस्कॉम के साथ एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को गाइड कर रहा था, मेंटोर कर रहा था एक कंपटीशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन, स्टार्टअप कंपटीशन। और वो कंपटीशन का प्राइज ही कुछ फंडिंग वगैरह ऐसा कुछ था। तो वो स्टूडेंट मुझे बोला, सर मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो मैंने उसे बोला कि आप ऐसा बोलो जजेस को कि मेरी कुछ भी एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है, ये जब तक बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता मैं ये बिजनेस से हटने वाला नहीं हूँ। एंड बिलीव मी, उसने ये जवाब जजेस को दिया। ही गॉट द सेकंड प्राइज इन द कंपटीशन। और वो बोला कि अगर मैं ऐसा सोचता नहीं, मुझे ऐसा सजेशन नहीं देते, तो मेरा कंपटीशन में बताना बहुत मुश्किल था। तो that is when I told him that unless and until you take efforts, unless and until you earn your rewards, you will not be able to feel a good taste of those rewards. Not necessary ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सही है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के लिए भी सही है, क्योंकि अगर आपके हाथ में अगर कोई बिजनेस आता है तो उसको आगे बढ़ाना, बड़ा करना, ये भी कोई आसान चीज नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आपका करियर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दादा, आपके परदादा, आपके पिता कोई स्पेसिफिक करियर में है तो बाय डिफॉल्ट आप भी सेम करियर में हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। टेक एग्जांपल ऑफ आर्टिस्ट, टेक एग्जांपल ऑफ म्यूजिशियंस, टेक एग्जांपल्स ऑफ ऑथर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। कुछ गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे, तो उसके लिए आपको खुद का एफर्ट चाहिए। जब तक आपका खुद का एफर्ट नहीं है, उसमें कमिटमेंट नहीं है, लगन नहीं है, तब तक यू विल नॉट फील प्राउड ऑफ इट। तो अगला डायलॉग देखने से पहले एक पासिंग रेफरेंस मैं आपको देता हूँ। ओयो रूम्स सबने सुना होगा। तो ओयो रूम्स का ये जो रितेश अग्रवाल है, तो उनका एज बहुत कम है, वो बहुत सक्सेसफुल है आज। लेकिन उन्होंने भी ओयो रूम्स के पहले जो कंपनी चालू की थी वो फेल हुई थी। तो कुछ बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप उनका आइडिया था, वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ये ओयो रूम्स कंपनी चालू की और अभी आप सब लोग जानते हैं कितनी सक्सेसफुल कंपनी हो गई। बहुत अच्छा डायलॉग, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। मैं नहीं बदलेगा अपना सपना अपनी सच्चाई से मेल खाने के वास्ते, मैं अपना सच्चाई बदलेगा जो मेरे सपने से मेल खाए। तो ये सीन में एक्चुअली ये फादर एंड सन इनके बीच में ये डायलॉग बाजी है। तो इस फादर इज अगेन वेरी अनहैप्पी कि वो कुछ रैप बैटल वगैरह चीज में काम कर रहा है। एंड वो बोलते हैं कि अरे तू सच्चाई के साथ मेल खाने वाला कुछ कर। तो बोलता है नॉट नेसेसरी, मैं मेरे सपने के साथ जो सच्चाई मेल खाएगी, जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर का बिजनेस एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमैंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसको एडजस्ट करके मैं मेरा बिजनेस आइडिया बनाऊंगा, उसको एडजस्ट करके मैं मेरा प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसके एडजस्ट करके मैं मेरा सर्विस ऑफरिंग दूंगा, उससे एडजस्ट करके मैं मेरा करियर डेवलप करूंगा। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि मैं एडजस्ट करके आगे बढ़ूंगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि यही मेरे नसीब में है, यही होने वाला था, तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। नसीब को कोसना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत लोग जो आसान चीज है वो करते हैं, वो नसीब को कोसते हैं। दे विल से दैट आई एम नॉट लकी। लेकिन अगर आप ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं तो आप ज्यादा लकी बन जाते हैं। ये मामले में आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ। मैंने इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, इंक्लूडिंग सम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। जैक मा, अलीबाबा करके कंपनी का नाम अगर आपने सुना है, चाइनीज कंपनी, तो बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। उनके और बहुत सारे कंपनी है। ये जैकमा जो एंटरप्रेन्योर है, अभी वो माने चेयरमैनशिप से रिटायर हो गए अलीबाबा कंपनी के। उन्होंने कैसे उनके करियर की स्टार्ट की? तो इंग्लिश सीखने के लिए वो टूर गाइड बन गए। टूर गाइड इसलिए बने क्योंकि वो जो शहर में रहते थे वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर होटल था, वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स आते थे। तो बोले मैं आपको लोकल जगह दिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप मुझे अंग्रेजी सिखाओ। ऐसे अंग्रेजी सीखते सीखते वो इंग्लिश टीचर बन गए। इंग्लिश टीचर बनते बनते उन्होंने ट्रांसलेशन इंग्लिश टू चाइनीज, चाइनीज टू इंग्लिश,
ट्रांसलेशन एजेंसी स्टार्ट की। ऐसे बनते बनते उन्होंने आगे बहुत सारे एफर्ट्स किए, फिर ये अलीबाबा करके कंपनी बनाया। तो अगर वो उनके ही आजू बाजू देखते तो उनको समझ में आता कि मैं ज्यादा से ज्यादा टीचर बन जाऊंगा, उससे ज्यादा मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, तो मैंने बहुत सारा अचीव कर दिया। लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन वहां तक नहीं था। तो जब वो एज अ ट्रांसलेटर जॉब में यूएस गए, तब उन्होंने कुछ चाइनीज, फर्स्ट टाइम उन्होंने इंटरनेट यूज किया, तो उन्होंने कुछ चाइनीज प्रोडक्ट सर्च किए, उनको कुछ चाइनीज प्रोडक्ट इंटरनेट नहीं मिले। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो बेसिकली चाइना के प्रोडक्ट्स है वो पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। तो मैंने और एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, बुक लिखा है डिजाइनिंग इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी डिजिटल में चीज यही है, क्योंकि जैकमा जी ने जो पहले सोचा था वो डिजिटल मार्केटिंग का ही इफेक्ट था। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच सही है, आपको एक सही दिशा है, तो ही आप आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका टूल बहुत अच्छा है तो आप आगे जाएंगे। सो इसीलिए मैंने आपको जैकमा का एग्जाम्पल दिया। तो आपको खुद को एडजस्ट करना है, आपके करियर को, आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को, सो दैट आपका जो ड्रीम है वो अचीव करने के लिए आप एक एक स्टेप आगे जाए। बहुत अच्छा डायलॉग। सकेला है क्या तेरा, दैट मीन्स आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू क्या कर रहा है तुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आपको फिर समझेगा कि इतना मामूली डायलॉग भी मैंने क्यों लिया है। वॉल्ट डिस्ने सबको मालूम है, डिज्नीलैंड सबको मालूम है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वॉल्ट डिस्ने की जो कंपनी है डिज्नी, वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉल्ट डिस्ने के आइडिया के अगेंस्ट थे कि डिस्ने वर्ल्ड बनाया जाए। तो बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने $10,000 दिए वॉल्ट डिस्ने को कि हाँ, हमने आपको $10,000 दे दिए, आप आपका डिस्नीलैंड बनाओ। तो वॉल्ट डिस्ने, उनका ड्रीम ऐसा था कि उनको वो बड़ा बनाने का ही था, तो उन्होंने उनका घर भी मॉर्गेज रखा, एक कैपिटल मिला लिया, और फिर उसके आगे उन्होंने डिस्नीलैंड बना दिया। और एक बार वो डिस्नीलैंड पॉपुलर हो गया तो जैसे बोलते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, वैसा सही में उन्होंने इतिहास बना दिया। लेकिन जब ये चीज, ये आइडिया उन्होंने उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखी, तब डेफिनेटली सबने बोला होगा कि सटकेला है क्या तेरा। तो जैसे एक कैरेक्टर सटकेला है क्या, दैट मीन्स आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर है, 99% ऑफ द टाइम आपको लोग बोलेंगे क्या सटकेला है क्या तेरा। लेकिन आपको कमिटमेंट है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। अगर आप आर्टिस्ट है, आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है। अगर आप कोई और भी प्रोफेशन में है और आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मुझे इसके बाद में रिजल्ट्स मिलेंगे, अभी मुझे एफर्ट्स लेने हैं, तो डेफिनेटली 10 में से 9 लोग आपको पूछेंगे क्या सटकेला है क्या तेरा। लेकिन अगर ऐसा सटकेला है तो ही डिस्नीलैंड बन सकता है, वरना आप जहाँ है वहीं पे रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई होप अभी ये शायद देखा, दो और डायलॉग नहीं, ऑलमोस्ट वी आर ओवर। मैं आपको और एक शेयर करना चाहता हूँ। ये सेम टॉपिक पे मैंने पूरा ब्लॉग लिखा है, उसका लिंक यहीं पे भी, यहाँ पे भी दिया है। फिर भी मैं इसका लिंक लीडरशिप टीम के साथ शेयर करूंगा, तो सब पार्टिसिपेंट्स के साथ आपसे ये शेयर हो जाएगा। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, वेबसाइट है, मोबाइल नंबर, सब चीज़ें यहाँ पे है। मैं आपको, जो लोग लिंक्डइन पे वगैरह है, आपको सजेस्ट करूंगा आप मुझे लिंक्डइन पे भी डेफिनेटली रिक्वेस्ट भेजें, हम कनेक्ट करेंगे। और दैट्स इट फ्रॉम मी इन टर्म्स ऑफ द सेशन। मुझे डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस, आइडियाज, कमेंट्स, सजेशंस, जो कुछ भी है